السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹاپ 5 پنجاب ٹی وی۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سرزمین پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 ہیروز کے بارے میں۔ پہلے نمبر پر ہے راجہ پورس۔ قدیم یونانی مورخین کے مطابق راجہ پورس کی حکومت جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے میں قائم تھی۔ پورس کا اصلی نام پورو تھا اور یونانیوں نے اسے پورس بنا دیا تھا۔ جب 323 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے پنجاب پر حملہ کیا تو وہ پورس کی ذاتی بہادری اور جرأت و ہمت اور مزاحمت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے دیکھا کہ جہاں پورس کے ہمسایہ ٹیکسلا کا راجہ اور کشمیر کا راجہ ابیسارس یونانی فوجیوں پر ایک تیر چلائے بغیر گھٹنے ٹیک گیا تھا، وہاں راجہ پورس 200 جنگی ہاتھیوں اور کئی ہزار رتھڑے اور کیل کانٹوں سے لیس مقابلے کے لیے اتر آیا تھا۔ اسکندر نے لاکھ چاہا کہ پورس مقابلے سے ہاتھ اٹھا لے، مگر پورس پیدائشی بہادر، وہ مقابلہ کیے بنا دوستی کا ہاتھ بڑھانا یا ہار ماننے کو غیرت کے تقاضوں کے خلاف جانتا تھا۔ مشہور ہے کہ اس نے سرزمین پنجاب کی حفاظت اور اس کے دشمنوں کے خلاف مزاحمت کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ دوستو اسکندر اعظم کو برصغیر کی طرف بڑھتا سن کر پورس نے ایرانی بادشاہ دلارائے کی حمایت کے لیے بھی فوج بھیجی تھی، جس کے ایران پہنچنے سے پہلے ہی دلارائے شکست کھا چکا تھا اور یوں اسکندر بڑھتے بڑھتے پنجاب تک آ پہنچا اور ارد گرد کے راجاؤں نے اس کی دہشت سے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن پورس پنجاب کی اصل مٹی سے بنا تھا، وہ آخری دم تک ڈٹا رہا اور اسکندر اعظم جیسے فاتح عالم کے لیے پورس کی شخصیت اچنبے کا باعث تھی۔ اس وقت اسکندر اپنی عظمت کی بلندیوں پر تھا اور اس کی فتوحات کی داغ افریقہ، یورپ اور ایشیا پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ ایک ایسے سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ اڑل نہیں ڈالتی۔ ابیسارس کے اطاعت گزار رویے کے بعد اسے پورس کی جانب سے کسی خاص مزاحمت کا خدشہ نہ تھا، لیکن پورس تو مرنے مارنے پر کھڑا تھا۔ دوستو اسکندر نے کئی مہینے جہلم کا دریا عبور نہ کیا، بلکہ اپنی جنگی حکمت عملی سے پورس کو ہلجان میں ڈالنے کے لیے کبھی اپنی فوجیں دریا کے کنارے ایک طرف لے جاتا اور کبھی دوسری طرف۔ اس عرصے میں اس نے پورس کی جنگی طاقت کا اصل راز معلوم کر لیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ پورس کے تربیت یافتہ جنگی ہاتھی اس کی طاقت کا مرکز ہیں۔ اسکندر نے اپنی فوج کو ہاتھیوں سے نمٹنے کی چالیں سکھانا شروع کر دی۔ اس کے برعکس پورس نے اسکندر کی طاقت کا کھوج لگانے کی زحمت نہ اٹھائی، جو کہ چاقو چبند تیر اندازوں پر مشتمل تھی۔ اس کے ایک طوفانی رات اسکندر نے جہلم شہر سے چند میل اوپر دریا کو پار کر لیا اور پورس کو خبر ملی تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو 2000 سواروں کے ساتھ بھیجا، مگر سکندر کی بے پناہ جلگار کے سامنے وہ سب ناکام ہو گئے۔ آخر کھڑی کے میدان میں، جہاں آج کل حضرت میاں محمد صاحب کا مزار ہے، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مستند تاریخ دانوں کے مطابق دوستو یہ جنگ سکندر کے اہم ترین معرکوں میں سے ایک تھی۔ سکندر نے یہ جنگ جیت لی، لیکن اس جنگ نے سکندر کو پورس کا احترام کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ شروع میں پورس کے ہاتھیوں کی وجہ سے سکندری فوج اور رتنوں کی نقل و حرکت سست رہی، لیکن پورس کے تیر اندازوں کے پاس لمبی کمانیں تھیں جنہیں زمین پر ٹکا کر تیر چلانا پڑتا تھا۔ جنگ کے روز بارش کی وجہ سے زمین پر پھسلن ہو چکی تھی، جس سے اس کے تیر انداز غیر مؤثر ہو گئے اور یوں آہستہ آہستہ سکندر کا پلڑا بھاری ہوتا گیا۔ اوپر سے پورس کی رتن بہت وزنی تھی اور وہ بارش کے باعث زمین میں دھنستی چلی جاتی تھی۔ اس کے برعکس سکندر کے تیر انداز بھاگتے گھوڑوں پر سے تیر چلاتے تھے اور وہ پورس کے تیر اندازوں کے مقابلے میں جب چاہیں پھانسا بدل لیتے تھے اور مختلف اطراف سے حملہ کر دیتے تھے۔ اس کی رتنیں بھی ہلکی پھلکی تھیں، اس لیے نقل و حرکت میں اس کے پیادے سپاہیوں نے پورس کے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دیں، جو کہ پلٹ کر خود ہی اپنے ہی فوجیوں کو روندنے لگے۔ پنجابی فوج کا ایک ایک سپاہی کٹتا گیا اور یا زخمی ہوتا گیا اور پورس کو اس حالت میں گرفتار کیا گیا کہ میدان جنگ میں کھڑا یہ جیالہ اکیلا پنجابی آدمی تھا اور اس کے بدن پر تیروں اور تلواروں سے لگے 9 بڑے بڑے زخموں سے ایک ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ دوستو جب پورس کو سکندر کے سامنے لایا گیا تو وہ لہو لہان تھا، لیکن اس کا سر بلند تھا اور اس کی آنکھوں میں بدستور چمک تھی، جس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سکندر نے اسے اپنے برابر بٹھایا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور پورس کا علاقہ اس کے پاس رہنے دیا۔ تاریخ دان سکندر اور پورس کی اس جنگ کو برابری کی جنگ قرار دیتے ہیں، گو کہ پورس کے ہاتھیوں نے بالآخر اس کی اپنی فوج کو ہی رون ڈالا تھا، لیکن انہی ہاتھیوں نے ابتدا میں ہزاروں یونانیوں کو بھی کچل کر رکھ دیا تھا۔ سکندر کی فوج اس لڑائی کے بعد سخت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ سکندر نے دراصل مصلحت کے تحت ہی پورس کو دوست بنایا تھا، کیونکہ اتنی محنت کے بعد ہزاروں ساتھیوں کی جانیں گنوانے کے بعد ہاتھ آئے ہوئے علاقے کو کون واپس کرتا ہے۔ وہ بزدلی جو پورس کے ساتھ اس جنگ نے یونانی فوج میں پھیلا دی تھی، جلد ہی رنگ لے آئی۔ جب سکندر بیاس کی جانب بڑھا تو دریا کے دوسرے کنارے ایک اور پنجابی فوج کو مزاحمت کے لیے تیار کھڑا دیکھا اور اس کو دیکھ کر اس کے سپاہی اور سپہ سالاروں نے بالکل ہی دل چھوڑ دیا اور اس طرح 5 دریاؤں کے دیس میں ڈٹے ہوئے جوان مرد پنجابیوں نے سکندر اعظم کا روح
को यहाँ से वापस यूनान की तरफ फेर दिया। वापसी पर पंजाबियों से एक और झड़प में सिकंदर को एक तीर लगा जो कि जानलेवा साबित हुआ और यूं एक पंजाबी के हाथों लफानी देवताओं की तरह आसमान पर चमकने वाला सिकंदर बंदे खाक हो गया। नंबर 2 पर है दुल्ला भट्टी। दोस्तों, लफ्ज दुल्ला अब्दुल्ला का मुहाफफ है क्योंकि पंजाब में आम रिवाज है कि प्यार से पूरे नामों को मुख्तसर कर लिया जाता है। नाचा अब्दुल्ला का इख्तिसार दुल्ला ही से किया जाता है, लेकिन हम इसकी बजाय आपको ये कहेंगे आप इस अजीम सपूत को अब्दुल्ला भट्टी कहकर पुकारें, क्योंकि जो तारीख मुगल बादशाहों के दौर में लिखी गई और बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने साम्राज्य मकासद के तहत एक खास रंग दिया और अब्दुल्ला को एक जवामर्द सुरमा नहीं बल्कि एक बागी डाकू के तौर पर पेश किया है। इसलिए इसका नाम बिगाड़ने बल्कि मिटाने के दर पर ही है, वरना कौमी तारीख कभी इतनी बदतमीजी नहीं कर सकती कि वो अपने जवामर्द सुरमाओं के नाम मुख्तसर करें। कुछ रवायतों के मुताबिक एक वक्त था कि लाहौर से बाहर दरिया रावी के किनारे से शुरू होकर रायसिंध के किनारे दूरावाला नदहान तक का इलाका दुल्ला दही बार कहलाता था। बहरहाल पंजाब के इस इलाके में जिसे अब्दुल्ला भट्टी के दादा के नाम पर सानल बार कहा जाता है, भट्टी खानदान ने 1332 से 1599 तक हुकूमत की है। शेखपुरा, फैसलाबाद और सरगोजा के दरमियान पिंडी भट्टियां इस इलाके का सदर मकाम था। दोस्तों, अपने अरूज के जमाने में भट्टी खानदान की 3 नस्लों ने एक बुर किसान तहरीक के तहत मुगल शहनशाहियत के खिलाफ बगावत की थी और ये बगावत अब्दुल्ला भट्टी के दादा सांदल के अहद में शुरू हुई और इसके बाप फरीद से होती हुई अब्दुल्ला भट्टी के दौर में नुक्ते कमाल को पहुंची। सांदल और फरीद को बागी करार दे दिया गया, लेकिन दोस्तों उससे पहले दौरे हाजिर में भी मोदी हुकूमत ने पंजाब के सिख किसानों के खिलाफ एक मुतनाज़ा बिल पेश किया था जिस पर किसान सरापा एहतजाज थे। अभी कुछ दिन पहले मोदी हुकूमत ने वो बिल वापस ले लिया है, जिस पर हम आप सिख भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। सांदल और फरीद को बागी करार दे दिया गया था और इन पर इल्जाम था कि वो लगान नहीं देते और अपने इलाके से गुजरने वाले इन काफिलों को लूट लेते हैं जो कि मुगलिया फौज के लिए रसद लेकर जाते हैं। हकीकत ये है कि सांदल और फरीद ही नहीं, इस इलाके के तमाम किसानों ने इनकी सरकर्दगी में मुगलिया शहनशाहियत और दिल्ली के हुक्मरानों को सिरे से तस्लीम ही नहीं किया था और बगावत कर दी थी। पंजाब के इस खित्ते के अवाम न सिर्फ अपने इलाके की आज़ादी को कायम रखना चाहते थे बल्कि साथ ही इन्हें शहनशाह अकबर के दीन इलाही पर भी शदीद एतराज़ था। बेशक पंजाबियों ने कभी मुल्ला के इस्लाम को कबूल नहीं किया और इसका सबूत हमारे दौर में यहाँ कायदे आज़म और मिस्टर भुट्टो की मकबूलियत है। गोया सारे मुल्ला इन दोनों के खिलाफ थे, लेकिन पंजाबियों ने इन्हें कामयाब बनाया और यही नहीं, मुझे यकीन है कि आइंदा भी इनका फैसला मुल्लाओं के खिलाफ ही होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि पंजाब के लोग वो दीन इलाही जैसे फरेब खाने के लिए तैयार न थे जिसकी हकीकत दीन से ज्यादा दुनिया की थी। 16वीं सदी तक तख्ते दिल्ली बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी कमजोरी ने मुगल लश्करों की जलगार के लिए रास्ता खोला और दिल्ली पर जलगार पंजाब के इन्हीं इलाकों से होती थी जो भट्टी खानदान के मतहत थे। मुगल फौज फसलों और चरागाहों को उजाड़ देती थी, आबादियों को लूट कर सिपाही और घोड़ों के लिए खुराक समेट कर ले जाते थे। वो मज़ाहमत करने वालों को कत्ल और इनकी फसलों को नजर आतिश कर देते थे। अब्दुल्ला भट्टी के दादा बजली खान सांदल और फरीद खान भट्टी ने फौजी दस्ते मुनज़्ज़म करके मुगलों के खिलाफ अपने हकूक की हिफाजत के लिए गोरिल्ला जंग की बुनियाद रखी थी, जिसे मुगलों ने हुसूसन अकबर ने बगावत का नाम दिया था। और लाहौर की गवर्नरी के दौरान अकबर ने सांदल और फरीद के खिलाफ लश्कर कशी की और पिंडी भट्टिया में किला फरीद को तबाह करके दोनों भट्टी सरदारों को गिरफ्तार कर लिया। फिर इन्हें लाहौर लाकर दिल्ली दरवाजे के बाहर फांसी दे दी और बगावत को मिटाने की खातिर इनकी लाशों में भूसा भरवा कर मुख्तलिफ बागी इलाकों में फिरवाया। सांदल और फरीद का अपने इलाके में इतना असर था कि मुगल हुक्मरानों को ये भी जरूरत न हुई कि इनकी लाशें सांदल बार में ले जाते, अलबत्ता वहाँ दूर दूर से खबरें पहुँचती थी और अपने सुरमाओं के साथ होने वाले इस सलूक पर जवानों का खून खोलता रहता था। वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला भट्टी जवान हुआ और अपने बाप और दादा की तरह न सिर्फ बहादुर था, इसके दिल में इनके खून का बदला लेने का भी जज्बा था। इस जज्बे ने इसे बाप और दादा के मुकाबले में कहीं ज्यादा बागी बना दिया था। इसने सांदल बार के आसपास के सारे इलाकों में बगावत की आग फैला दी थी और पंजाब में मुगलों के रसद के काफिले गुजरने की गुंजाइश न छोड़ी। जब भी इन काफिलों की हिफाजत पर ममूर मुगल सिपाहियों से अब्दुल्ला भट्टी की मुठभेड़ होती तो इनका सफाया कर देता। अकबर के दीन इलाही के खिलाफ नफरत और वतन की आज़ादी के लिए तड़प और मजलूम किसानों के इस्तेसाल के खिलाफ बगावत, बाप दादा के खून का इंतकाम लेने के जज्बे ने अब्दुल्ला भट्टी की शोहरत दूर दूर तक पहुंचा दी थी। इसकी मुहिम्मात और बहादुराना कारनामों के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में फैल गए थे। वो सांदल बार की सरहदों को वसी करता गया और यहाँ तक कि दरिया सिंध के किनारे तक गया, जहाँ मियाँ वाली और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान दरिया खान के करीब वाला का कस्बा आज भी मौजूद है। आस पास की छोटी छोटी रियासतों के हाकिमों
ने भी भट्टी रियासत की बालादस्ती कबूल कर ली थी और यूं अब्दुल्ला भट्टी अकबर के लिए एक नया मसला बन गया था। अब्दुल्ला भट्टी की बागियाना जिसारतों पर मुगल आदम चुप नहीं साध सकता था। जब इसने देखा कि पंजाब की इस बगावत मुगलिया सल्तनत के दबदबे में शदीद कमी आती जा रही है तो वो तख्ते लाहौर पर आ बैठा। इधर अब्दुल्ला भट्टी भी जानता था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। इसने भरपूर मज़ाहमत के लिए दूर नजदीक के साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो अक्सर रातों को देर तक जंगी मनसूबा बंदी करता रहता। अब मुगल सल्तनत के अजीम और मसाइल के सामने अपने सार को बुलंद रखने के लिए इन्हें क्या हरबे और हथकंडे इस्तेमाल करने होंगे। कुछ ही अरसे बाद अब्दुल्ला भट्टी को इतला मिली कि सांदल बार के शमाली इलाके में एक काफिला मुगलों के लिए रसद लेकर जा रहा है। अब्दुल्ला भट्टी और इसके साथी ने अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा हो गए और खेतों खलियानों और जंगलों बयाबानों में से होते हुए वो दिनों का सफर घंटों में तय करते रसद के काफिले तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों काफिला थका हुआ था। गोया अब्दुल्ला और इसके साथी भी दूर से आए थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने मुहाफिज सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया और 12,000 की नफरी पर मुश्तमिल मुगल काफिला ही देखते तितर बितर हो गया। काफिले का सरदार दुम दबाकर भाग गया था। अब्दुल्ला भट्टी ने इसका पीछा किया और तलवार के एक वार से इसका सर कलम करके एक चादर में बांध लिया और इस इलाके में एक बहादुर शख्स था अपना पैगाम इसको दिया और इसके साथ सूबेदार का सर अकबर बादशाह के लिए तोहफे के तौर पर भी दिया और अपना पैगाम इसके पहुंचाया कि ये अकबर बादशाह का अब्दुल्ला का तोहफा है जो कि सांदल का पोता और फरीद का बेटा है और अपने बाप दादा का इंतकाम लेने के लिए अपने जवामर्द साथियों के साथ इस अहद पर कारबंद है कि अगर सांदल बार में किसानों से लगान लेने के लिए मुगलों ने किसी सूबेदार को बेचा इसकी इजाजत के बगैर रसद के काफिले इधर से गुजरे तो उनका भी यही हशर होगा। मेनान खत्री लाहौर के दरबार अकबरी में पहुंचा तो इस वक्त बादशाह के पास बड़े बड़े सरदार और काबिल एतमाद सिपह सालार बैठे हुए थे। वाकयात सुनकर अकबर आग बगोला हो गया था और इसने ऐलान किया कि अब्दुल्ला की सरकशी अब बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसे लाजमन गिरफ्तार करना होगा। फिर इसने दरबार में चैलेंज दिया कि कौन सा सूरमा है जो इस बागी को बांध कर हमारे दरबार में जिंदा पेश करे। उस वक्त के मशहूर सरदार मिर्जा निजामुद्दीन ने इसका चैलेंज कबूल कर लिया और अकबर ने कहा कि वो कामयाब रहा तो मुंह मांगा इनाम पाएगा, अगर नाकाम रहा तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो निजामुद्दीन ने कौल तोड़ दिया, लेकिन जूं वो अब्दुल्ला भट्टी की शुजाअत और दिलेरी और बेखौफी की दास्तानें सुनता इसका दिल बैठ जाता। अगर वो अपना अहद नहीं निभा पाता तो अकबर के हाथों कत्ल होगा और अगर अब्दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार करके निकलता है तो इसके हाथों मारे जाएगा। दोस्तों ये चैलेंज जो निजामुद्दीन ने कबूल किया था इसके लिए दर्द सर बन गया। बहरहाल इसने आखिरी मौका देख कर निजामुद्दीन 16,000 फौज के साथ सांदल बार की तरफ चला। इस वक्त अब्दुल्ला भट्टी दरिया रावी के किनारे शिकार खेलने में मसरूफ था और पिंडी भट्टिया में सिर्फ खवातीन और कुछ मुलाजिमीन ही रह गए थे। वहाँ अब्दुल्ला भट्टी का भाई महर था जिसे वो शहर की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ गया था। निजामुद्दीन ने शहर का मुहासरा कर लिया और महर ने मुकाबला किया और निजामुद्दीन के 61 चीदा आदमियों को जहर आलू तीरों से मौत का निशाना बना दिया। वो परेशान होकर पीछे हटा। अब्दुल्ला भट्टी के मुखालिफ भाई बंधु यानी शरीकों ने निजामुद्दीन का हौसला बढ़ाया कि वो इसका साथ देंगे और इसे पिंडी भट्टिया से यूं नाकाम नहीं जाने देंगे। निजामुद्दीन पलटा और शरीकों की मदद से शहर फतह करके औरतों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें अब्दुल्ला भट्टी की माँ भी शामिल, 2 बीवियां भी शामिल थी। फातेह मुगल फौज कामयाबी के जश्न मनाते हुए लाहौर की तरफ वापस जा रही थी कि रास्ते में सांदल बार के आखिरी गांव के सरदार लाल खान ने अपने साथियों को जमा किया और इन्हें गैरत दिलाई कि जब हमारी औरतें लाहौर के मुगल दरबारों में पेश होंगी तो सारा पंजाब बेआबरू होगा। साथ ही इसने अब्दुल्ला भट्टी को भी खबर पहुंचाई कि क्या कुछ हो चुका है। अब्दुल्ला ने इन्हीं कदम पर लाल खान के पास पहुंचा और दोनों ने मिलकर मुगल फौज पर हमला कर दिया। जबरदस्त जंग हुई। अब्दुल्ला भट्टी और इसके साथी ने मुगल फौज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर रख दिया और तितर बितर कर दिया। जब निजामुद्दीन को भागने की कोई राह न मिली तो इसने अब्दुल्ला भट्टी की वालिदा के पांव पकड़ लिए और कहा कि खुदाया अम्मा बन कर मुझे बचा लो। अब्दुल्ला भट्टी की मां ने इसकी फरियाद सुन ली और बेटे से कहा कि निजामुद्दीन को अपना भाई बना लो और वो हमेशा इसका ताबे रहेगा। अक्सर शुजाअत दिलेर लोगों की तरह अब्दुल्ला भट्टी ने भी ये बात मान ली और कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। आहिस्ता आहिस्ता निजामुद्दीन ने अब्दुल्ला भट्टी का एतमाद जीत लिया और अब्दुल्ला भट्टी को जुनून की हद तक शिकार का शौक था और इधर निजामुद्दीन भी मौके की ताक में था, लेकिन निजामुद्दीन का दिल साफ न था और एक दिन वो शिकार के बहाने अब्दुल्ला भट्टी को एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ इसे घेरे में लिया जा सकता था। दरअसल इसने अंदर ही अंदर मुगल दरबार से मुसलसल राब्ता रखा हुआ था और एक पूरी फौज इसके इशारे की मुंतजर थी। अब्दुल्ला के घोड़े ने इसे खबरदार किया कि वो रास्ता बदल कर निकल जाना चाहता था, लेकिन निजामुद्दीन ने इसे
झूठी तसल्लियां दी कि खतरे की कोई बात नहीं। दुश्मनों में घर कर के भी अब्दुल्ला भट्टी ने वासनाक हुए अकेले 211 मुगल फौजियों को मार कर आया। इसका घोड़ा दलदल में फंस गया और वो गिरफ्तार हो गया और इसको लाहौर लाया गया और शहंशाह अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने इसे समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब्दुल्ला भट्टी ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने बाप फरीद और अपने दादा सांदल के खून से पंजाब की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता और न ही अकबर के दीन इलाही को कबूल कर सकता है। और आखिरकार 26 मार्च 1599 को लाहौर के मल्ला नहास में, जहां आजकल नौलखा बाजार है, इसे सरेआम फांसी दे दी गई थी। इस वक्त पंजाब के अजीम सूफी शायर हजरत शाह हुसैन इसके करीब मौजूद थे और इनके आखिरी अल्फाज ये थे कि पंजाब का कोई गैरतमंद बेटा पंजाब की मिट्टी कभी न बेचेगा। मुगलिया दौर के सरकारी तारीख नवीसों ने अब्दुल्ला भट्टी को एक डाकू और लटेरा बागी के रूप में पेश किया है, लेकिन पंजाब के देहात में अब्दुल्ला भट्टी के नाम से जो वारे और किस्से आज भी गाए जाते हैं, इनमें वो पंजाब की हुर्रियत पसंदी का अलमबरदार और इस किसान तहरीक का सरबराह था, जिसके तहत मुगलिया अहलकारों को लगान देने से इनकार कर दिया गया था। हकीकत यह है कि जिस तरह अब्दुल्ला भट्टी के हम उनसर शाह हुसैन ने शहनियत के दौर में हुर्रियत के गीत गाए और पंजाब के ज़मीर को जगाए रखा, इसी तरह पंजाब के ज़मीर की सलामती के लिए अब्दुल्ला भट्टी ने भी अपनी रगों के गर्म खून से हुर्रियत की पुरवकार तारीख लिखी। दोस्तों, ये थी अब्दुल्ला भट्टी की जिंदगी की कहानी। नंबर 3 पर जिस सूरमा का जिक्र हम करने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक भी सरजमीन पंजाब से था, जिसका नाम राय अहमद खान खरल था। दोस्तों, राय अहमद खान खरल 1803 में साहिवाल के गांव झामर में पैदा हुए, जो कि आजकल जिला उकाड़ा में गोहागीर बंगले के करीब वाक़या। अहमद खान खरल जब जवान हुआ तो इसके कानों में अंग्रेजों के जुल्म व सितम की कहानियां पढ़ने लगी। वो इन कहानियों पर अपने दांत पीसता तो इसके बुजुर्ग इसे ये कहकर चुप करवा देते कि अभी वक्त नहीं आया, कहते कि अभी तैयारी करो, क्योंकि तैयारी के बगैर इतने ताकतवर दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। आखिर वक्त बीता गया और वो वक्त आया जब राय अहमद खान खरल और इसके साथियों और बुजुर्गों को मुद्दत से जिसका इंतजार था। अंग्रेजों ने 1857 की जंग आज़ादी को दिल्ली में तशद्दुद और तोपों के जोर से दबा लिया था और ये आग फिर पंजाब में भी भड़क उठी थी। जगह जगह फौजी किले बनने लगे। मुजाहिदीन जो आज़ादी के तालिब थे उनसे जेलें भरने लगी। कमांडर बर्कले उस वक्त साहिवाल का असिस्टेंट कमिश्नर था और इसे इल्म था कि इस इलाके में खरल बरादरी की बड़ी अतदाद बस्ती है, जिससे इनकी अंग्रेज हुकूमत को खतरा हो सकता था। जराफिये के इतबार से खरलों का गढ़ गुहागीर ही बनता था। बर्कले ने वहां आकर डेरे डाले और खरलों के साथ साथ जाटों और दीगर कास्ट के लोगों को भी वसी पैमाने पर पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। गुहागीर एक बड़ी जेल का मंजर पेश करने लगी थी। बर्कले का एक जनरल था जिसने बर्कले को हिदायत दी थी कि इलाके में पहुंचते ही खरलों और इनके हवारियों को कंट्रोल में ले, क्योंकि सिर्फ इसी तरह कामयाबी मुमकिन थी, वरना साहिवाल में कैंप लगाने का कोई फायदा न था। याद रहे कि यह वही जनरल था जिसके नाम पर जिला साहिवाल अंग्रेजों के वक्त से लेकर हमारे अपने जमाने तक जिला मनगैमरी के नाम से जाना जाता था। बर्कले की कार्रवाई के जवाब में अहमद खान ने रावी पार झामर राख में बसने वाली बरादरियों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर आज हमने आगे बढ़कर मैदाना वार मुकाबला ना किया तो पंजाब सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम होकर रह जाएगा। अहमद खान की शोला बयानी ने इलाके के तमाम मकामी सरदारों का खून गरमाया और वो घोड़ों पर चढ़कर रात की तारीखी में गुहागीर जेल पर टूट पड़े। इन मकामी सरदारों को गैर पंजाबी तारीख में जंगली के नाम से याद किया जाता है, हालांकि वो हड़प्पा तहजीब के वारिस थे। राय अहमद खान खरल ने रात 2 बजे हमला किया और बर्कले की फौज ने मुकाबला किया, मगर अहमद खान ने तमाम कैदियों को छुड़वा लिया। अहमद खान और इसके साथियों के अलावा खुद कैदी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े। इस लड़ाई में पौने 400 अंग्रेज सिपाही मारे गए थे और इस वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह सारे पंजाब में फैल गई और अंग्रेज इंतजामिया को राय अहमद खान खरल की ताकत से खौफ आने लगा। उन्होंने अपनी पॉलिसी में तब्दीली कर ली और अब अंग्रेज के रवायती साजिशी जहन में अहमद खान को धोखे से घेरने और खत्म करने के नए मंसूबे बनने लगे। राय अहमद खान खरल को गुहागीर जेल के वाक़े के बाद मुजाहिदीन की फौज लेकर आसपास के जंगलों में छुप गया, मगर बर्कले ने एक कमीनी चाल चली कि इसने नवाही देहात में अहमद खान करीबी रिश्तेदारों, अजीजों और बहनों बेटियों को हिरासत में ले लिया और इसे पैगाम भिजवाया कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना इसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। इस पर राय अहमद खान खरल पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, मगर दीगर बरादरियों के लोगों ने इसकी हिमायत में आवाज उठाना शुरू कर दी। इनकी तहरीक मज़ाहमत को तेजी से जड़ पकड़ता देखकर अहमद खान को छोड़ दिया गया। अलबत्ता इस पर पाबंदी लगा दी कि वो गुहागीर बंगले के इलाके से बाहर नहीं जाएगा। बर्कले को डर था कि कहीं ये तहरीक रावी पार भी जोर न पकड़ जाए, मगर अहमद खान के साथ जिन लोगों ने पंजाब की धरती की कसमें
में काहिदीन से बैद था कि वो दुबक कर बैठ जाए। राय अहमद खान खरल की सरकर्दगी में एक खुफिया मीटिंग हुई और इसमें तय पाया कि रावी पार के पंजाबियों को साथ मिलाकर साहिवाल की तमाम अंग्रेज चौकियों पर चारों तरफ से बैक वक्त हमला कर दिया जाए। मगर अफसोस के कमालिया का खरल सरदार और सरफराज और इलाके का सिख सरदार निहान सिंह बेदी दोनों ही गद्दारी कर गए। 12 सितंबर 1857 को सरफराज ने डिप्टी कमिश्नर को खबर पहुंचाई कि अहमद खान और इसके वो साथी जो गोहागीर के इलाके में बंद थे रातों रात दरियाए रावी पार कर गए हैं और इनका इरादा है कि तमाम अंग्रेज चौकियों पर एक साथ हमला कर दिया जाए। कमालिया के खरल सरदार सरफराज की राय अहमद खान से खानदानी दुश्मनी थी। अगर उस वक्त कमालिया के खरल भी गोहागीर और साहिवाल के खरलों बटनों का साथ दे जाते तो ऐन मुमकिन था कि पंजाब में अंग्रेज के कदम उखड़ जाते। बहरहाल सरफराज की मुकर्ररी पर बर्कले ने चारों तरफ से अपने कासिद दौड़ा दिए। बर्कले खुद घुड़सवार पुलिस की एक बटालियन लेकर तेजी के साथ रावी की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो राय अहमद खान खरल को रास्ते में ही रोक सके। साथ ही इसने सरफराज के जरिए कमालिया के दूसरे खरल सरदारों को पैगाम भेजा कि वो इनकी मदद करें, जिसका इन्हें भरपूर सिला भी दिया जाएगा। अंग्रेजों ने निहान सिंह बेदी के जरिए असदहात में भी ऐलान करवाया कि वो राय अहमद खान खरल को गिरफ्तार करने में अंग्रेज हुकूमत का साथ दें। अगर वो साथ देते हैं तो इनको इनाम इकराम से भी नवाजा जाएगा। तमाम हिफाजती तदबीर के बावजूद दोस्तों राय अहमद खान की दहशत का इस बात से अंदाजा लगाए कि गोहागीर से सरकारी खजाना और रिकॉर्ड और तमाम कैदी भी तहसील की एक इमारत में मुंतकिल कर दिए गए थे, क्योंकि इन्हें खतरा था कि कैदी मुजाहिदीन राय अहमद खान खरल की शह पर जेल ही न तोड़ दें। जब बर्कले रावी के किनारे पहुंचा तो राय अहमद खान खरल पतीन पार कर चुका था। बर्कले ने इसकी तलाशी में झामर रखा को नजर आतिश कर दिया और इधर गोहागीर में अंग्रेजों ने मोर्चा बंदियां कर ली थी और इधर से एक कर्नल जो खुद लाहौर से अपनी रेजिमेंट लेकर आया था और इनका सामान्य जंग का अंदाजा कीजिए कि इनके पास तोपे बंदूकें और गोला बारूद और भारी जंगी सामान था और दूसरी तरफ मुजाहिदीन के पास ज्यादातर लाठियां तलवारें और चंद सौ बंदूकें थीं जो कि रियासत भावलपुर से मंगवाई गई थी। मुजाहिदीन मकई और जवार के खेतों में से छुपते छुपते गोहागीर बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। अंग्रेजों का इनका पता उस वक्त चला जब वो इनसे बामुश्किल 400 गज के फासले पर थे, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे तो इन पर तोपों के मुंह खोल दिए गए और तोपों और गोलियों की बारिश की गई। अंग्रेज फौज ने इन पर दस्ती बम भी फेंके और पंजाबी मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। अंग्रेजी फौज ने ताकुब किया लेकिन ये ताकुब इनके लिए मुखलिफ साबित हुआ था। चनाचा अंग्रेज फौज वापस आ गई। इस हमले में मुजाहिदीन का ज्यादा नुकसान तो ना हुआ, हालांकि अंग्रेज फौज ने इनके खिलाफ हर किस्म का असला इस्तेमाल किया था। मुजाहिदीन जंगलों में से होते हुए फतेहपुर के आसपास रपोश हो गए थे। फिर दोस्तों 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों को इतला मिली कि राय अहमद खान खरल एक मरतबा फिर बटू सरदारों से मिलकर अपनी रेजिमेंट को तरतीब दे रहा है। लाहौर में एक मीटिंग हुई और बर्कले एक भारी फौज लेकर मुजाहिदीन पर हमला आवर हुआ। अंग्रेजों की पहली बटालियन मुजाहिदीन के सामने आई तो उन्होंने इसके छक्के छुड़वा दी। बहुत से अंग्रेज सिपाही मारे गए, जिससे इनमें भद्दड़ मच गई। सूरत हाल से फायदा उठाते हुए अहमद खान खरल ने भरपूर हमला कर दिया, जिससे अंग्रेज फौज में जबरदस्त खौफ हरास फैल गया। लेकिन बर्कले को ताज़ा दम दस्ते भी पहुंच गए। रावी की गोद में जाकर इसने अपने सिपाहियों को रोका जो भाग रहे थे। इसने इनका हौसला बढ़ाया और एक बार फिर इन्हें लड़ने पर राजी कर दिया। इसी असना में राय अहमद खान खरल भी ताकुब करते हुए वहां आ पहुंचे। घमासान का मार्का हुआ और ये एक तारीखी जंग थी जिसकी अहमियत अंग्रेजों के तारीखदानों ने भी तस्लीम की है। और इस जंग से जो रावी के किनारे 3 दिन तक लड़ी गई, कोई 3000 से ज्यादा हमला आवर फौजियों की लाशें उठाई गई थी। लड़ाई के दौरान पंजाब का चपा चपा गूंज उठा। जो आसपास के जवामर्द पंजाबियों को खबर होती वो आकर अंग्रेजों के खिलाफ अहमद खान खरल के साथ शामिल होते गए। जंग के तीसरे दिन राय अहमद खरल ने अंग्रेज फौज के करीब सफाया कर दिया तो ललकार कर कहा, फरंगियों लाओ कहाँ है तुम्हारी बाकी फौज, ये पंजाब है दिल्ली नहीं। पंजाब के बेटों की गर्दनें काट तो सकती है, झुक नहीं सकती। इस ललकार का दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। पंजाब के मुजाहिदीन आजादी की जंग जीत चुके थे। जमर आग में हमला आवरों की लाशें ही लाशें नजर आ रही थी, मगर अंग्रेज एक मरतबा फिर लाहौर से भारी तादाद में तादादम फौज ले आया और राय अहमद खान खरल ने जंग जारी रखी। राय अहमद खान खरल उस वक्त जब अंग्रेज फौज के तादादम दस्ते आए तो उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे और उनको नमाज में ही शहीद कर दिया गया। सिख सरदार बेदी और खरल सरदार सरफराज की गिरफ्तारी
के बावजूद शहीद भाइयों और साथियों ने बर्कले को ज़िबा कर इंतकाम लिया। हमारा मानना है कि अगर बेसिक और कमालिया के खरल इस लड़ाई को राय अहमद खान खरल की जाती लड़ाई ना समझते और बड़ी बड़ी जागीरों के लालच में फरंगियों का साथ ना देते तो आज पंजाब का नक्शा दूसरा होता। और ये थी राय अहमद खान खरल की जद्दोजहद की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।